Welcome students to channel study 24/7. Now I am with the general awareness questions asked in SSC CGL 6th September 2016 and this is the part 1. ये पार्ट 1 है. पार्ट 2 में और क्वेश्चंस आएंगे. जो भी क्वेश्चंस अभी मेमोरी बेस मुझे मिले वो मैंने अपलोड किए हैं विद द आंसर्स. सो हम लेट्स स्टार्ट डिस्कशन. वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. सो अरविंद पनगारिया इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. दिस इज द आंसर. But we should know little knowledge about the Niti Aayog. That's why when the Niti Aayog was formed, so on 1st January 2015, on which commission this Niti Aayog has been formed. So it is preceding Planning Commission. Jurisdiction means who is controlling the Niti Aayog. Government of India controlling the Niti Aayog. Headquarters is in New Delhi. Agency executives, let's discuss the agency executives. Niti Aayog always has a ex officio chairman as a prime minister. So Narendra Modi ji is a chairman of Niti Aayog. Then Arvind Pangaria, vice chairman. Vivek Debroy, member. VK Saraswat, member. Ramesh Chand, member, and Amitabh Kant, CEO, chief executive officer. These are some important names we should know about Niti Aayog. Okay. So next, Deepika Kumari related to which field? So Deepika Kumari is a sports person and she is related to archery. Okay. So these questions are now getting very common in the general awareness section. Sometimes and like in PV Sindhu case, you have been asked she has defeated Van Hyang of which Van Hyang. Van Hyang from which country? So Van Hyang from China. Last time in last tip that question had been asked. Okay. So next, liquid allotrope of non-metal. Liquid allotrope of non-metal क्या है? So first of all we should know the what is the allotrope. It is the property of some chemical element to exist in two or more different forms in the same physical state known as allotropes of these elements. Okay. जो एक या ज़्यादा सब्सटेंस में सेम फिजिकल स्टेट में मिलते हैं उसको उस सब्सटेंस का एलोट्रॉप कहते हैं. और देखिए आई हैव मेंशन हियर सम नॉन मेटल्स कार्बन, फॉस्फोरस, देन सल्फर, सेलेनियम and oxygen, and these are in bracket I have mentioned the allotropes of these respectively. So carbon have diamond, graphite, amorphous carbon, and etc. These are the allotropes of कार्बन. फॉस्फोरस के वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, स्कारलेट फॉस्फोरस, वायलेट, ब्लैक एंड डाई फॉस्फोरस. देन ऑक्सीजन के डाइऑक्सीजन, ओजोन, टेट्रा ऑक्सीजन, octa oxygen. Then sulfur has a allotropes like carbons also. Selenium, red selenium, cycloacetate, gray selenium, and polymeric acid selenium. So these are the some allotropes I have mentioned here. I don't know exact options, what were the options in the exam, but I have mentioned some allotropes. So if in future you face the questions related to allotropes, so you should answer it. Next, AIDS virus destroy which blood cells? So we have been asked like which blood cell has been destroyed by AIDS. So this is blood cells mean white blood cell. Okay, basically the answer is white blood cell. So AIDS virus destroy white blood cell, but in a standard manner how we can elaborate it. This is a virus in the group of viruses called retroviruses. HIV destroys cells in the body called CD4 T cells. CD4 T cells are a type of white blood cell or a lymphocyte. These are important cells involved in protecting the body against various bacteria, viruses and other germs. जो सेल्स हमारी बॉडी में ज़रूरी होते हैं जो कि अदर बैक्टीरियाज और वायरसेस को हमारे बॉडी से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं उनसे, वही ब्लड सेल्स को ये एड्स वायरस ख़त्म कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? देखिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ये रिपीटेड क्वेश्चन है. इसी एसएससी सीजीएल के किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है. अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस के, तो आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन. सो देखिए मेरे आपको एक ही सजेशन है, आप प्लीज़ वीडियोज़ को बार बार देखिए या फिर आप नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को. विद दी आंसर्स आपको याद भी हो जाएंगे और आपको याद रहेगा कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. सो क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं. मुझे ऐसे भी कॉमेंट्स मिल रहे हैं कि सर रिपीट होते हैं क्या क्वेश्चन? तो डेफिनेटली क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इसी सीजीएल में हम देख रहे हैं कि रिपीट भी हो रहे हैं. पिछले सीजीएल्स में तो हुए लेकिन इसी सीजीएल में भी रिपीट हो रहे हैं. और कुछ नहीं, आपको देखिए 25 क्वेश्चंस फेस करने हैं जनरल अवेयरनेस के, तो इजी बन गया है अब थोड़ा.
क्यों? क्योंकि 4 to 5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे, या फिर तो 2 से 3, बाकी 20 क्वेश्चन पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। और 20 क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ एमसीक्यूज पे जोर दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जोर दीजिए, और जिनका एग्जाम लास्ट के शिफ्ट्स में है अभी आने वाले, यानी लास्ट तक 11 सितंबर तक, तो उनको तो 27 से लेके 10 तक जो भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे वो सारे उन्होंने देखना बहुत ज़रूरी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि वो देखेंगे तो उनको 4-5 क्वेश्चन तो इजीली मिल जाएंगे अपने सेट में। नेक्स्ट, रेड लाइन ये किन दोनों देशों के बीच है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन उसे कहा जाता है। रेड क्लिफ लाइन वॉज पब्लिश ऑन 17 अगस्त 1947 जब पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे अर्थक्वेक प्रोन एरिया, और उसमें भी पूछा गया है कि प्लेन्स कौन से हैं ऐसे इंडिया के अंदर जो ज़्यादा अर्थक्वेक के प्रोन है। सो इंडो जाइजेंटिक प्लेन और हिमालयन रीजन, और भी और कुछ होंगे, लेकिन प्लेन्स पूछा है तो इंडो जाइजेंटिक प्लेन एक ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। भी जब डिवैल्यूएशन होता है करेंसी का तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स पे उसका क्या असर होता है? तो बेसिक समझ में लीजिए, इंपोर्ट उसका जो हमारा इंपोर्ट है वो बढ़ जाता है, यानी उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और एक्सपोर्ट की कॉस्ट घट जाती है। तो एक्सपोर्ट में हमें बेनिफिट नहीं मिल पाता ज़्यादा, ये बेसिक है। इसको एलेबोरेशन के साथ कैसे पढ़ेंगे हम? इंपोर्ट्स आर मोर एक्सपेंसिव, दैट्स वाई कॉस्ट पुश पोल्यूशन ऑकर्स, एंड डिमांड पुल पोल्यूशन भी होता है उसकी वजह से। बाद में विथ एक्सपोर्ट्स बिकमिंग चीपर, मैन्युफैक्चरर्स मे हैव लेस इंसेंटिव टू कट कॉस्ट एंड बिकम मोर एफिशिएंट। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट रहेंगे उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू घट चुकी है, ठीक है। देयरफॉर ओवर टाइम कंक्लूजन क्या निकलता है कि कॉस्ट इंक्रीज होगी किसी भी चीज़ की, तो आपके देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। डिवैल्यूएशन अगर करेंसी का होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है। बेसिकली अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज पर विच आर्टिकल? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते रहते हैं ज़रूरत के हिसाब से, तो वो कौन से आर्टिकल के थ्रू होते हैं? सो अमेंडमेंट होते हैं आर्टिकल 368 के थ्रू। और अमेंडमेंट भी कैसे होते हैं? देखिए, एक स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं, सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी लगती है उसमें। स्पेशल मेजॉरिटी का भी एक मीनिंग है कि जैसे 50 मीन्स जो एमपीज है वो प्रेजेंट एंड वोट होता है, उसमें से भी 50% निकाला जाता है, तो उसको हम प्रॉपरली पढ़ेंगे। उसका एक रेंज है, जैसे अगर 545 है तो 165 से लेके 265 के बीच में अगर वोट्स गिरते हैं तो वो स्पेशल मेजॉरिटी माना जाता है। ऐसे कुछ आंकड़ा है, मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता क्या है। तो और एक होता है जिसमें रेटिफिकेशन लगता है 29 स्टेट से हमारे इंडिया में, तो 50% स्टेट का रेटिफिकेशन लगेगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ। तो 15 स्टेट का रेटिफिकेशन लगता है, यानी परमिशन लगता है वो लॉ पास करने के लिए। तो जैसे अभी करंटली हमारे जीएसटी के साथ हुआ, जीएसटी को रेटिफाई कर दिया है 15 स्टेट ने, जो कि नीड थी। फर्स्ट स्टेट कौन सा हुआ, उसमें से भी क्वेश्चन बन रहे हैं कि विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई जीएसटी बिल। सो आसाम वॉज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई जीएसटी बिल, एंड विच वॉज द लास्ट स्टेट टू रेटिफाई जीएसटी बिल। सो गोवा वॉज द 15th स्टेट एंड द लास्ट स्टेट टू रेटिफाई द जीएसटी बिल। सो ये ध्यान में रखना जरूरी है, ये भी आगे जाके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर कॉइन इन इंडिया इज स्टार्टेड बाय। देखिए, सिल्वर कॉइन किसने स्टार्ट किया इंडिया में? तो शेर शाह सूरी। इन्होंने रुपया जो है ये इंडिया में इन्होंने ही लाया है, और सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन, बाद में गोल्ड जिसको मोहर कहा जाता था, कॉपर को डैम कहा जाता है, ये कॉइन्स इन्होंने ही इंडिया में लाए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट किंग ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन थे? तो नसरुद्दीन महमूद शाह 1394 टू 1412 एडी के बीच में इन्होंने राज्य किया है। ये तुगलक डायनेस्टी के लास्ट किंग थे। फाउंडर भी पूछ सकते हैं, फाउंडर पूछे नहीं है इस बार, लेकिन मैंने इसीलिए डाल दी कि ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं मैं आगे जाके। तो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ऐसे ही आपको स्लेव डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, इनके बारे में पता करना है, इनके फाउंडर, और ये कब से कब तक थी डायनेस्टीज, क्योंकि आगे जाके उन डायनेस्टीज से भी क्वेश्चन बन सकता है। सो 2 मिनट लगेंगे आपको और वो करने में। और उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी देखिए, कौन सी डायनेस्टी पहले आई। मैं पहले बता देता हूँ आपको, स्लेव डायनेस्टी पहले आई थी, उसके बाद आप खुद अब आप खुद करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। सो ये कुछ क्वेश्चन थे गाइज, देखिए ये मैंने अपलोड कर दिया आपके लिए। अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, प्रॉपर लग रहे हैं, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आपको बेनिफिट मिलेगा वीडियोस का ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि अपडेट आएगा तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को देख पाएंगे। सो दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ गाइज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।